Welcome to today's class. Today we will discuss what are the engineering materials and what are their properties. Okay, so let us see. See engineering materials, their structure and its properties. Okay, कोई दूसरा आएगा ऐड नहीं हो तो बताइए. Let us see what are the different types of engineering materials. So there are different types of engineering materials: metals and alloys, polymers, composites, ceramics. Polymers are again subdivided into three types: thermoplastic polymers, thermosetting polymers, and elastomers. So basically the engineering materials are divided into four types, that is metals and alloys, then polymers, then composites, and then ceramics. And polymers are again divided into three types, that is thermoplastic polymers, thermosetting polymers, and elastomers. Okay, now let us see what do you mean by metal. A solid material which is typically hard, shiny, malleable, fusible, and ductile with good electrical and thermal conductivity is known as metal. Okay, एक ऐसा मेटल, एक ऐसा सॉलिड मटेरियल जो कि ठोस हो, चमकीला हो, किसी भी पदार्थ में उसको आप किसी भी शेप में आप उसको ढाल सकते हो. ठीक है. हार्ड मतलब थोड़ा सॉफ्ट भी हो जिससे एक रूप से दूसरे रूप में आप उसको कन्वर्ट कर सकें. साथ ही उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छा हो, तो वो जो मटेरियल है वो मेटल कहलाता है. ओके, अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड, शाइनी, malleable, fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity is known as metal. For example, लोहा, iron, gold, सोना, silver, चांदी, and aluminium, and alloys such as steel. ओके, स्टील भी एक अलॉय होता है. ठीक है, तो ये हो गया मेटल, जिसका एक फिगर आप देख सकते हैं, इसमें मेटल शो हुआ है स्टील का. नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय alloy. An alloy is a material composed of two or more metals or a metal and a non-metal. कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई किसी एक धातु के साथ किसी दूसरे धातु को आप मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है मेटल, या तो फिर किसी एक धातु के साथ किसी अधातु को आप मिक्स कर देते हैं तो वो जो कंपोजिशन जो नया धातु बन जाता है वो कहलाता है एलॉय. ओके, एक सेकंड लाइन में रहिएगा. हेलो, नहीं सर क्लास हो रहा है. हाँ, जी जी. ओके, देख सकते हैं आप, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ अलॉयज सच एज ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, bronze, metal sludge, steel, copper, because all these uh, all these are made from two or more different types of metals or non-metals. Okay, तो जब भी किसी एक मेटल के साथ दूसरा मेटल या किसी एक मेटल के साथ दूसरे नॉन मेटल को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है एलॉय. ओके, नाउ लेट अस सी
How you can classify metals and alloys? Metals are divided into or classified into two types, that is ferrous metals and non-ferrous metals. Okay? Ferrous metals are again subdivided into or classified into two types, that is steels and cast irons. Then steels is subclassified into two types. Steels is Steels are subdivided into two types, that is plain carbon steel and alloy steel. Cast iron is again subdivided into three types, that is white cast iron, malleable cast iron, grey cast iron, and so on. Okay, okay, got it. So ferrous metals are divided into two types, steels and cast iron. Cast iron again divided into white cast iron, malleable cast iron, grey cast iron, SG cast iron, and chilled cast iron. Whereas non-ferrous metals is divided into three types, that is copper alloys, nickel alloys, and aluminum alloys. Okay, copper का alloy, nickel का alloy और aluminum का alloy. Ferrous iron as main constituent. In ferrous material, फेरस और दो फेरस नॉन फेरस दो टाइप के होते हैं. तो फेरस में मेनली जो कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है. ठीक है. और नॉन फेरस में लोहे को छोड़ के, आयरन को छोड़ के जो दूसरा मेटल रहता है वो मेन कॉन्स्टिट्यूंट रहता है. इन स्टील कार्बन परसेंटेज इज लेस देन 2%. इन कास्ट आयरन कार्बन परसेंटेज इज मोर देन 2%. In copper alloy, carbon is the main component or main content. In aluminum alloy, aluminum is the main constituent or main component or main content. And in nickel alloy, nickel is the main constituent or main element or main content. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक. देखो, कास्ट आयरन में जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 2% से ज़्यादा होता है. स्टील में जो कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो 2% से कम होता है. ठीक है. कार्बन एलॉय में जो मेन कंपोनेंट होता है वो कि कार्बन होता है. एल्यूमिनियम एलॉय में जो मेन कंपोनेंट होता है वो एल्यूमिनियम होता है. सिमिलरली उसी तरीके से निकल एलॉय में जो मेन कंपोनेंट होता है वो निकल होता है. गॉट इट. अब देखते हैं पॉलीमर. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? द वर्ड पॉलीमर मीन्स many parts, because poly means many and meros means units or parts. So polymer means many units or many parts. ठीक है. polymer means many parts or many units. Okay, देख सकते हैं एग्जाम्पल. दिस इज द मोनोमर्स. डिफरेंट 8 monomers are there, and after polymerization it gets converted into polymer, in which it is arranged in a sequential manner or in a proper arranged manner. ओके. मोनोमर में देखेंगे तो अलग अलग मोनोमर में अलग अलग मोनोमर्स आपको दिख रहे हैं. जब पॉलीमराइजेशन आप परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, ये जो 8 मोनोमर आपको दिख रहे हैं ये प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे सीक्वेंस में, या कैसे भी इसमें जो भी जिस अरेंजमेंट को फॉर्मेशन होना है उसमें प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि जो पॉलीमर बनता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है. ठीक है. आगे देखते हैं. थर्मो सेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. A thermoplastic or thermosoftening plastic is a plastic material polymer that becomes pliable or moldable
above a specific temperature and solidifies upon cooling. मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इस टाइप का प्लास्टिक पॉलीमर है जो कि मोल्डेबल, जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप उसको ढाल सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर, और ठंडा करने से वो जम जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो कहलाता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। Thermoplastics may be reshaped by heating temperature and solidifies upon cooling। जो कि जो भी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आपके पास है उसको आप दोबारा थर्मो थर्मो उस थर्मोप्लास्टिक को दोबारा आप गर्म करके दूसरे एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस उसको ठंडा करने के बाद उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, जमा सकते हैं, तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है। Thermosetting polymers have their chains cross-linked by covalent bonds। ठीक है, the starting materials are placed into a mold to form the desired shape। The polymer is then heated or initiated with ultraviolet light, and chemical reactions occur to form the cross links between the chains। क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो भी जिस भी मटेरियल का आपको पॉलीमर बनाना है उसको एक सांचे में हम लोग डाल के रख देते हैं। ठीक, उसके बाद उस पॉलीमर को उस सांचे के साथ हम लोग गर्म करते हैं, फिर उसमें उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए डिफरेंट मेटल्स के बीच में आपस में क्रॉस लिंक चेन फॉर्मेशन होता है। दस रिजल्टिंग थ्री डायमेंशनल सॉलिड स्ट्रक्चर कैन नॉट देन बी चेंज। उससे क्या होता है, उसके बाद जो आपको जो नया पॉलीमर आपको मिलता है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाता है, जो जो कि बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब गर्म होने के बाद वापस आप उसको चेंज कर लें, ऐसा नहीं होता, एक बार वो बन गया तो बन गया। ठीक है, तो ये कहलाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। फर्दर, हीटिंग विल नॉट कॉज द पॉलीमर टू सॉफ्टन, मेल्ट और चेंज शेप लाइक थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब अगर आप उसको चाहते हैं कि उसी थर्मोसेटिंग पॉलीमर को मैं दोबारा गर्म करके दूसरे शेप में ढाल लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थर्मोसेटिंग पॉलीमर अगर एक बार ठंडा होने के बाद जो शेप ले लिया वो वही उसी शेप में रहेगा, उसको आप गर्म करेंगे तो उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जो कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार एक मेटल में बनाऊं, प्रोडक्ट में बनाऊं, और जब चाहूँ उसको गर्म करके दूसरे मेटल में कन्वर्ट कर लूँ, दूसरे शेप में कन्वर्ट कर लूँ, तो आप थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यूज़ करिए। और अगर आपका वन टाइम यूज़ है, आप चाहते हैं कि एक ही बार मैं गर्म करके एक बार मेटल जो मैंने बना दिया, जैसे मोबाइल का शेप मैंने बना दिया, तो इसी तरीके से रहे, तो आप थर्मोसेटिंग पॉलीमर यूज़ करिए। ठीक है, see, this is a picture of thermoplastic polymer, thermosetting polymer. The picture below shows the typical structure of a thermosetting polymer. The red lines represent the cross links between the chains। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये क्रॉस लिंक शो कर रही है चेन के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा पॉलीमर्स है उसके बीच में चेन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इपॉक्सी रेजिन यूज्ड एज कोटिंग मटेरियल्स, caulks, manufacture of insulating materials, etc. Phenolic resins, tool handles, billiard balls, sprockets, insulation, etc. Unsaturated polyester resins, manufacture of plastic reinforced fiberglass, commonly known as polyester fillers, etc. These are the examples of thermosetting polymer। Okay? जो तीसरा टाइप का जो आपका पॉलीमर होता है दैट इज इलास्टोमर्स। सो लेट अस सी व्हाट डू मीन बाय इलास्टोमर्स। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वो जो लोग जो कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं जो इलास्टिक मटेरियल का बना होता है दैट इज इलास्टोमर्स। लेट अस सी, इलास्टोमर मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट आर मेड ऑफ पॉलीमर्स दैट आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स एक्वायरिंग अ फाइनल स्लाइटली क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्ड के द्वारा उनको ज्वाइन करके आपस में डिफरेंट मोनोमर्स को ज्वाइन करके जो पॉलीमर तैयार होता है दैट इज इलास्टोमर्स। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर्स। एग्जांपल, नेचुरल रबर मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गास्केट, शू हील्स, एक्सेट्रा। पॉलीयूरिथेन्स
Polyurethanes are used in the textile industry for the manufacture of elastic clothing such as lycra, also known as foam, wheels, etc. Polybutadiene, elastomer material used on the wheels or tires of vehicles given the extraordinary wear resistance. जो टायर बनता है वो पॉलीब्यूटेडाइन का बनता है जो कि एक इलास्टोमर, ठीक है। न्यूप्रीन, न्यूप्रीन इज द मटेरियल यूज्ड प्राइमरीली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेट सूट्स, is also used as wire insulation, industrial belts, etc. The neoprene is also a elastomer. Okay. Silicon. Silicon is a material used in wide range of materials and areas due to their excellent thermal and chemical resistance. Silicons are used in the manufacture of pacifiers, medical prostheses, lubricants, mold, etc. Here, silicon is also a elastomer. See, diagrammatically, how we can define that which material is a, which polymer is a thermoplastic, which one is the elastomer, and which one is the thermostatic. So here you can see this first figure. This is a thermoplastic polymer. In second figure, this is a properly arranged manner. The monomers are properly arranged. The polymer is properly arranged. So this is the elastomer, and a different proper setting type structure. This type is known as thermosetting polymer. Okay, this is a thermoplastic polymer. This is thermosetting polymer. Proper chains are made there in thermosetting polymers. Now let's see what do you mean by composites. Composite materials, also known as composition materials, or in short known as composites, are materials made from two or more constituent materials with significantly different physical or chemical properties that when combined produce a material with characteristics different from the individual components. कहने का मतलब ये है कि दो और दो से ज़्यादा मटेरियल को एक साथ मिलाने पे जो नया मटेरियल बनता है वो कंपोजिट कहलाता है। लेकिन जो नया मटेरियल आपका बना, जो कंपोजिट मटेरियल बनेगा, उसका जो प्रॉपर्टीज रहेगा वो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट मटेरियल आपने जो लिया है उसके प्रॉपर्टीज से भिन्न रहे, अलग रहे, ठीक है। व्हाट इट सी बोइंग 787 आपने नाम सुना होगा, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसको बनाने के लिए दैट इज कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, so this is example of composite material. Got it? चलिए आगे देखते हैं। ना देखते हैं कि हाउ composites are classified. Composites are classified into three types, that is laminar composites, particle reinforced composite, and fiber reinforced composites. Okay, अब देखते हैं ceramics. Ceramics is defined as any inorganic or non-metallic material. Inorganic substances do not contain carbon or its carbon compounds. Okay, inorganic material में जो कार्बन या उसके कार्बन कंपाउंड नहीं रहते हैं उसको बोलते हैं सेरामिक्स। ठीक है, नॉन मेटेलिक बेसिकली पूरा पूरा नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मतलब कार्बन कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, मेटल में कार्बन कंपोनेंट रहता है। अगर नॉन मेटल है तो कार्बन कंपोनेंट नहीं है, तो कार्बन कंपोनेंट नहीं है तो सेरामिक में कार्बन कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, because it is a non-metal, inorganic material. Okay, let us see how ceramics is classified. So ceramics is classified into three types: metal oxides, nitrides, and carbides. Okay, metal oxides is again classified into various types. Let us see: alumina, beryllia, zirconia, glass, glass ceramics. Okay, so this is the
Tree diagram for classification of ceramic. Ceramic is classified into three types: metal oxides, nitrides, and carbides. Metal oxide is again divided into five types, that is alumina, beryllia, zirconia, glass, and glass ceramics. ठीक है, देखिए इस टाइप के स्ट्रक्चर आप सेरामिक से बने हुए आपने देखा होगा, घर में सजाने के लिए डेकोरेटिव आइटम्स ये यूज़ करते हैं, ये सब बेसिकली सेरामिक्स इज यूज फॉर डेकोरेटिव आइटम्स. ओके, now let us see what you mean by amorphous material. आपने देखा होगा ग्लास आपने देखा है, तो ग्लास इज amorphous material. The material have no regular arrangement of their molecules is known as amorphous materials. ठीक है, the material which has no regular arrangement of their molecules. ठीक है, what it material like glass and paraffin are example of amorphous material. These material have properties of solid. Solid की जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी वही प्रॉपर्टी amorphous material की भी रहती है, लेकिन amorphous material के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो प्रॉपरली अरेंज रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं रहते हैं. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप एंड डिफ्यूज स्लोली. ठीक है, मतलब पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड का प्रॉपर जितना प्रॉपर्टी रहता है वो amorphous material का भी प्रॉपर्टी रहता है, बट इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रीअरेंज नहीं रहते हैं, बस ये मेन डिफरेंस. ठीक, सी दिस इज अ क्रिस्टलाइन, दिस इज पॉलीक्रिस्टलाइन एंड दिस इज अमोर्फस. अमोर्फस में जो गैप रहते हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन, बट रीअरेंज्ड फॉर्म में नहीं रहते हैं. ठीक है, एमोर्फस कार्बन, सी दिस इज एमोर्फस कार्बन, ये चाहे तो इसको अरेंज करके आप एक बढ़िया सा सॉलिड बना सकते हैं, लेकिन ये रीअरेंज नहीं है, अरेंज फॉर्म में नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एमोर्फस. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइन मटेरियल. In a crystalline structure, the atoms are arranged in three-dimensional array called as lattice. ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल एरे होता है उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं. ठीक, थ्री डायमेंशनल एरे को बोलते हैं लैटिस. द लैटिस हैज अ रेगुलर रिपीटिंग कन्फिग्रेशन इन ऑल डायरेक्शन. तीनों दिशा में उसका जो रेगुलर रिपीटिंग कन्फिग्रेशन, जो भी कन्फिग्रेशन होगा वो बार बार रिपीट होता रहेगा. ठीक है, जिसकी मेटेरियल मेटेरियल का आप बात कर रहे हैं उस मेटेरियल के, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, लैटिस में जो मटेरियल का जो कन्फिग्रेशन रहता है वो बार बार रिपीट होता रहता है. देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गया वाई डायरेक्शन, ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया जेड डायरेक्शन. ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन में तीनों डायमेंशनल एरे को मिला के जो लैटिस फॉर्मेशन होता है उस पूरे लैटिस में जो भी मटेरियल का कन्फिग्रेशन है वो पूरा फैला हुआ है. ठीक है, सी crystal material or lattice structure has width distance is known as A, length distance is known as B, and height distance is known as C. Okay, and the angle between length and height is alpha, angle between length and width is beta, and angle between width and length is gamma. Okay, what it now let us see what do you mean by polymorphism. A crystal is defined as an orderly array of atoms in space. ठीक है, normally metals are made up of number of crystals and each crystal consists of large number of atoms. ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी एक मेटल है वो नंबर ऑफ क्रिस्टल से मिलकर बना है और एक जो क्रिस्टल है वो नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है. ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज एटॉमिक अरेंजमेंट इन सॉलिड्स. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल to exist in more than one form or crystal structure. एक फॉर्म से दूसरे, एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए जो सॉलिड की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब या तो वो मटेरियल सॉलिड भी है या तो वो लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है, वो जो क्षमता होती है किसी भी एक मटेरियल की कि एक फॉर्म से ज़्यादा में रहने की, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, see this is a single atom, this is a unit cell and this is a lattice. This is unit cell, एक यूनिट सेल है ये, और ये पूरा एक लैटिस. ठीक, डिफरेंट यूनिट सेल्स को मिला के एक लैटिस बनता है. गॉट इट. नाउ
Let us see the crystal structure in metals. The majority of metals falls in either of the following crystal structure. That is the BCC, known as body centered cubic, FCC, known as face centered cubic structure, and HCP, known as hexagonal closed packed structure. Okay? Body centered, face centered, hexagonal. Let us see what do you mean by body centered cubic structure. See, this is a unit cell consisting of 8 atoms at the corners and 1 atom at the center. Okay? Example of this body centered is alpha iron, molybdenum, Wv, vanadium, iridium, chromium, sodium, potassium and so on. ठीक है, इस तरीके से ये जो आपको क्रिस्टलिटी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, इसका जब इसको मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली अरेंज रहेंगे तो इस तरीके से दिखेंगे. देखिए, सेंटर में एक है और कॉर्नर कॉर्नर में एक एक है, मिला के 8 हो जाएंगे. ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो इन दिस स्ट्रक्चर देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स, आपको 8 कॉर्नर एटम दिखाया था, एंड 1 एटम एट द इंटीरियर, सेंटर में एक एटम रहेगा. ठीक है, सो इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल विथ नो एटम ऑन फेस. फेस में कोई एटम नहीं है, कॉर्नर में है और सेंटर में है, इसलिए इसको बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं. फेस में कोई एटम नहीं. ठीक है, NaB is known as the average number of atoms NaB is known as the average number of atoms. NC is the total number of corner atom in unit cell. जितने भी एटम कॉर्नर में हैं एक यूनिट सेल में वो NC होता है. ठीक है, NaB is the average number of atoms per unit length, per unit. ओके, ठीक है. NF is the total number of face atom in unit cell. Ni is the center or interior atom. Here NC corner number of atom is 8. Ni center or interior atom is 1 because center में एक atom था और corner में 8 atom थे. So N average will become NC by 8 plus NF by 2 plus Ni by 1. This is the formula. Okay. So average number of atoms per unit cell is 2. इस तरीके से हम लोग एवरेज नंबर ऑफ एटम का कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, मीटिंग एंड हो जाएगा. अगर मीटिंग टाइम लिमिट खत्म होगा तो एंड हो जाएगा, तो नेक्स्ट अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में रहेगा. ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में रहेगा. ठीक है, अभी जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलाते हैं. नाउ लेट अस सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 8 एटम जो कॉर्नर में थे वो तो रहेंगे, और साथ ही हर फेस में एक एक एटम रहेगा, सेंटर में एटम नहीं रहेगा. हर कॉर्नर में रहेगा एक एक एटम और हर फेस में एक एक एटम रहेगा. कॉर्नर में कोई एटम नहीं रहेगा, मतलब सेंटर में कोई एटम नहीं रहेगा. हर कॉर्नर में एक एक एटम और हर फेस में एक एक एटम. ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, हर कॉर्नर मिलाएंगे तो 8 कॉर्नर हो जाएंगे और 6 फेस हो जाएंगे. ठीक है ना, 8 से 14 हो जाएंगे. ठीक है, FCC के एग्जाम्पल देख लेते हैं. गामा आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, प्लेटिनम. इस तरीके से अरेंज रहेगा. देखिए, सेंटर में कोई एटम नहीं है, कॉर्नर में एक एक एटम है और हर फेस में एक एक एटम है, सेंटर में नहीं है. ठीक है, हियर कॉर्नर एटम इज 8 और हर फेस में मिलाएंगे तो 6 फेस होंगे, तो हर फेस में एक एटम. NF is 6. Ni सेंटर में कोई इंटीरियर में कोई एटम नहीं है, इसलिए 0. हियर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इज 4. व्हाट इट. फिर देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड में हेक्सागोन फॉर्म में रहेगा, तो नीचे में हेक्सागोन में हर कॉर्नर में एक रहेंगे और सेंटर में एक एटम रहेगा. ऊपर स्ट्रक्चर में हेक्सागोन में हर कॉर्नर में एक रहेगा और सेंटर में एक रहेगा, और अंदर में 3 एटम और रहेंगे सेंटर. ठीक है, तो कितने हो गए, 6 7 7 14 और 3 17. देखते हैं कितने इस टाइप से स्ट्रक्चर. ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, जिंक, बेरिलियम, कैडियम, कोबाल्ट, जिर्कोनियम, टाइटेनियम एंड सो। ठीक है। कॉर्नर एटम्स शेयर्ड बाय 6 सेल्स। हेक्सागोन स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर एटम होते हैं वो 6 सेल से शेयर किया गया है। 3 फ्रॉम बिलो एंड 3 फ्रॉम अबव। 3 टॉप मोस्ट में और 3 लोअर मोस्ट में। फेस एटम्स आर शेयर्ड बाय एडजेसेंट 2 सेल्स एंड एटम्स इन द इंटीरियर्स आर शेयर्ड बाय ओनली 1 सेल। ठीक है। तो फॉर्मूला इज Nc/6 plus Nf/2 plus Ni/1। तो फॉर HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, देयर आर 12 कॉर्नर एटम्स। 12 कॉर्नर एटम हो गए, गिन लिए थे। 6 नीचे 6 ऊपर हेक्सागोन में। ठीक है। 2 एटम्स एट द सेंटर of the above 2 faces and 3 atoms in the interior of the unit cell। ठीक है, समझ गए। So here Nc is 12, Nf is 2 and Ni is 3।